चलो. So we'll just wrap up the chapter today. आज खत्म कर लेंगे इस chapter को, ज़्यादा कुछ है नहीं, because we'll finish convex mirror. Usually convex mirror cases do not come, but you should still know because all the varieties are always there in concave mirror. Good evening, sir. Yeah, good evening. Convex does not have variety. So first we will see quickly, we will have a look at rules for image formation by convex mirror. Rules for image formation by convex. And you need not remember any one. If your concept is clear, you will be able to find out the rules on your own based on the rules that you know for concave mirror. Okay. Rules for 1 minute. I don't know why the writing has come like this. Give me a minute. Okay. So we are going to do convex mirrors. Convex mirrors image formation rules. Image formation rules. So we start our class with convex mirror image formation rules, and they are quite simple. They're quite simple. They're all same as concave mirror rules. Okay. And just little bit of changes are there. So for your memory purpose, I will write concave mirror on this side. Okay. And I'll be drawing the rough rules for concave mirror on the right side just to bring your memory. Okay. And on the left hand side, we will be doing the rules for convex mirror. Okay. On the left hand side, we'll be doing convex mirror. That is what we are studying right now. And on the right hand side, we will just see where the rules in the case of concave mirror. So let's start with the first rule. Okay, the first rule. Now, imagine what we have to make. We have to make a convex mirror. Convex means jiska पेट मोटा होता है. Convex. Now our mirror is in this manner. Convex. Okay. So let's make the principal axis. Sorry, this is a principal axis. Etch the mirror. Now you are this is a convex mirror. Okay. Where is the focus of the convex mirror? The focus of the convex mirror is in the opposite side. Remember, P, point from which the rays appear to diverge out. So the focus is on the opposite side. Obviously, the center of curvature is also on the opposite side, right? Right. What was the first rule in the case of a concave mirror? Let's see the first rule in the case of a concave mirror. Okay. So this is our concave mirror. And let's see what was the rule. एक करेंगे तो बाकी सब अपने आप याद आता जाएगा. इसमें कैसा था? इसमें pole. This was the pole. Right? This is pole. This is focus. And this is center of curvature. The first rule used to read like this. What was the rule? A ray of light which is parallel to the principal axis. A ray of light which is parallel to the principal axis passes through the focus. ये याद है कि नहीं इतना कुछ? अगर याद नहीं है, then it is all Greek and Latin for you. So here the ray of light will come from which side? The ray of light will come from this side. Okay, this is the ray of light which is coming. Now it is a mirror. It cannot pass through the focus because it cannot go to the other side. It's not a lens. But if you apply the same analogy, देखो, समझो, लिखना बाद में करो, इसको देखो थोड़ा सा. Have your eyes on the screen, because if you don't see on the screen, you will not understand. Sahib, I'm again repeating, have your eyes on the screen. On the right is this is only for memory. This is only to brief your memory. Nobody will learn in this manner, but I'm doing this just to bring your memory. This is memory. This is what you already learned. This is you learned. A ray of light parallel to principal axis passes through focus. So in this case, in our case, the ray cannot pass through focus like this because this is a mirror. The ray will get reflected. But how will the ray get reflected? Sir, the ray will get reflected in such a manner that it will appear that it has come out of focus. Means the ray will get reflected in this direction like this. Did you understand the rule? The rule says a ray of light parallel to the principal axis gets reflected in such a way that it appears it has reflected out of the focus. It appears that it has reflected out of the focus. First rule done. So in short, can I write my first rule? My first rule in short form, I'll write ray parallel to principal axis appears to
reflect out from focus. It only appears to you. Appears to reflect out of focus. Done? Rule number 1 done. Right? Let's move to rule number 2. Let's bring our concave mirrors rule number 2. So what is our rule number 2 of concave mirror? So this is my concave mirror. Sorry. This is my concave mirror. And let me bring my rule number 2 here. What was rule number 2? Make your principal axis. This is my principal axis. A ray of light which hits at the center of curvature, right? Oh, sorry, at the pole. A ray of light which hits at the pole gets reflected back in the same direction. Means if it has come in this way, it goes up also in this way, right? So let us write this as, this is my pole, focus, center of curvature, right? नहीं, मैंने wrong rule लिखा है. आपने भी मुझे रोका नहीं. I wrote something wrong. At pole, always angle of incidence is equal to angle of reflection. Sorry, children, my mistake. Sorry. So it should be exactly opposite. No, not exactly opposite. A ray passing through the center of curvature comes back on the path. तो second rule ये वाला था कि pole वाला था, where the angle of incidence is equal to angle of That is the reflection. last rule that we study. End of the day, all the 4 rules should be covered. That's all. This is one rule of mirror, right? This is the rule of concave mirror. तो इसका convex का counterpart क्या होगा, ये देखते हैं. इसका convex का counterpart क्या होगा. तो पहले बनाते हैं एक convex mirror. So this is my convex mirror. सोचो ना कैसा रहेगा. इसके केस में कैसा रहेगा, बनाते हैं. पहले principal axis बना लो. So this is the. Should we draw the concave and convex mirrors both, or just the concave? No. But see, Darshika, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हम सिर्फ इस चीज को पढ़ रहे हैं. बेटा कंफ्यूज मत होना. Yes, sir, I know, but just confirming, should we draw both or just the concave? If you are actually learning right now, I would suggest आप दोनों ड्रॉ कीजिए. दोनों ड्रॉ करने से क्या रहेगा ना, आपको याद आता रहेगा कि ये रूल कैसे. देखो, व्हाट इज, पहले आप रीजन को समझिए. बेटा, द वैरायटी ऑफ इमेजेस विल बी सीन मोर इन केस ऑफ कॉनकेव ओनली, राइट? दिस इज स्टडीड इन डिटेल. हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत सारे हमने क्लास किए, फिर हमने न्यूमेरिकल्स किए. इसको डिटेल में पढ़ते हैं. ये जो है ना, इसका समराइज स्टडी रहता है. लेकिन जब आप रूल्स को समझ रहे हैं, बिकॉज यू हैव लर्नड दीज रूल्स, then try to find an analogy to find the rules, the similar rules for convex. वो हमारी अप्रोच है. हम रूल इसके लिए जानते हैं, वही रूल करेंगे. तो इसमें कैसा रहेगा इसका? तो I think इसमें भी वैसे होएगा कि it will appear to be like going into the center of curvature and reflect back the same. इसमें ऐसा रहेगा कि अगर कोई रे, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पहले हम ऐसे कर लेंगे. Let's make it like this. Let's make a ray from center of curvature से. तो अब इसको अच्छा से बनाते हैं. It's something like this. If you have a ray which is trying to be incident on the center of curvature, then which is trying to be incident on the center of curvature. Did you understand? Look at my drawing. देखो बेटा, रे यहां से यहां तक आया, इसके बाद तो और आगे जा नहीं पाएगा. लेकिन अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करके देखते हैं तो हम बोलेंगे दिस रे is incident at the center of curvature, a ray which is going towards the center of curvature. This is the thought process. Okay, this ray gets reflected back on the same path. अभी कंपेयर करके देखो. कॉनकेव में क्या होगा, वो पॉइंट से पास करेगा. कॉन्वेक्स में वो किसी भी पॉइंट को छू ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट मिरर के ऑपोजिट साइड में है. समझ में आ रहा है ना बात? सारे पॉइंट्स मिरर के ऑपोजिट साइड में है. चाहे आप फोकस बोल लो, चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो, ये सारे पॉइंट्स मिरर के ऑपोजिट साइड में है. तो ऐसे केस में कैसा होगा? ऐसे केस में हम सिर्फ ये बोलेंगे अपीयर्स टू और विच इज गोइंग टुवर्ड्स. तो यहाँ पे लिखिए, अभी इस लॉ को लिख लेते हैं. इस लॉ को कैसे लिखेंगे? रे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स center
of curvature travels back, travels back in same direction after reflection. Okay, are you fine with these two laws now? Easy है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू द फोकस. हमेशा कॉनकेव को याद रखो, राइट हैंड साइड को याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड को आप खुद बना सकते हो. दर्शिका देखो उसमें क्या याद रखना है आपको. आप सिर्फ याद रखो, ना मैं फोकस पहुंच पाऊंगी, ना मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंच जाऊंगी. मैं सिर्फ उस दिशा की तरफ सोच सकती हूँ कि मैं वहां गई थी, पर आप जा नहीं पाओगे. क्योंकि डिफरेंस क्या है बेटा, ये देखो, दिस इज द, ये एक बार ये देख लो, दिस इज द इंसिडेंट साइड ऑफ द मिरर. कॉनकेव में ये पॉइंट्स उसी साइड में होते हैं. और देखो यहाँ पे इंसिडेंट साइड कौन सा है, यहाँ पे इंसिडेंट है. सारा ऑब्जेक्ट वगैरह इधर रहेगा, लेकिन ये पॉइंट्स किस साइड है, ऑपोजिट साइड में. तो इन पे रेस कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे. ये लेंस नहीं है, ये लेंस नहीं है कि इस पे रे आर पार हो जाएगा. ठीक है ना, क्लियर. चलिए बनाते हैं अब हमारा तीसरा, और दो ही हमें सीखने हैं, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड, आइए थर्ड रूल को पहले वापस, अरे मन ठीक है ना, क्लियर हो रहा है. तो आइए थर्ड रूल को यहाँ पे देखते हैं. थर्ड रूल इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल था कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं तो फोकस में जाएंगे. थर्ड रूल हमारा जस्ट इसका ऑपोजिट है. थर्ड रूल ये कहता है, नाउ दिस इज माय पोल, दिस इज माय फोकस, दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर. फर्स्ट रूल क्या था, देखो तो बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस में पैरेलल, फोकस से गुजरेंगे. थर्ड रूल जस्ट उल्टा है. थर्ड रूल है, अगर फोकस से गुजर के आ रहे हैं, अगर हम फोकस से गुजर के आ रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएंगे. जस्ट वन का उल्टा है. देखो वन देखो और थ्री देखो, जस्ट उल्टा है. ओके, इफ यू हैव, लोगो मुझको एक ही स्क्रीन में ले आता हूं तो आपको शायद थोड़ा समझ में आ जाएगा. अभी देखो तो दोनों रूल्स को देखो बेटा, फर्स्ट और थर्ड को देखो. फर्स्ट में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वेंट थ्रू फोकस. थर्ड में क्या था, थ्रू फोकस वेंट थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस. अभी इसी का काउंटर पार्ट हम बनाएंगे फॉर कॉन्वेक्स. इस कॉन्वेक्स के काउंटर पार्ट को कैसे बनाएं, इस कॉन्वेक्स के काउंटर पार्ट को हम ऐसे बनाएंगे. पहले अपना कॉन्वेक्स मिरर बना लो. दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर. ओके, What have you written after travels for the second? travels in the same, travels back, travels back beta, travels back in the same direction, in the same, in the same direction, in the same direction after reflection. Okay, so let's make our mark our points on this one. बोल साहेब, ये है पोल, ये क्या हो गया, ये फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना. तो ये रूल कैसा रहेगा, ये रूल ऐसा रहेगा कि हम फोकस में तो कोई रे लेने ला नहीं सकते हैं, पर फोकस की तरफ एम कर सकते हैं, है ना. तो एमिंग के लिए पहले अपना 2 नंबर ही बना लो. ये हो गया. नाउ ए रे ऑफ लाइट which is aimed at the focus, see, a ray of light which is aimed at the focus after reflection becomes parallel to the principal axis. देख लो दर्शिका एक बार देख लो, मैं फिर से बनाता हूं. देखो ऐसा है, a ray of light which is aimed at the focus, समझ में आया, becomes parallel to principal axis after reflection. क्योंकि ये पार नहीं हो पाएंगे कभी भी. That's just the difference with concave. So यहाँ पे लिखते हैं, आइए अब आप बनाइए आराम से. I'll wait for you, don't worry. तो यहाँ पे लिखते हैं ray traveling towards focus becomes parallel after, parallel to principal axis after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल बन जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक है, अपना टाइम लो बेटा, लेकिन समझ के करो. डोंट कॉपी व्हाट आई एम राइटिंग.
ट्राई टू अंडरस्टैंड द सर ये कॉन्सेप्ट। वाला फिर से बताओगे? अच्छा कौन सा? ये पहले राइट साइड वाला देख लो, ये देखो फिर से बता रहा हूं। पहले कॉनकेव मिरर में देखते हैं। कॉनकेव में क्या होता है, अगर कोई रे फोकस से पास करे तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाता है। समझ में आया? ओके। हमारे यहाँ पे क्या है, ये फोकस वगैरह सब उल्टे साइड में है, तो यहाँ से पास तो कर ही नहीं सकता है, राइट? तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा रे इसकी तरफ आ रहा है। किसकी तरफ? फोकस की तरफ आ फोकस की रहा तरफ। है। तो ऐसे अगर रे इस पॉइंट पे जैसे इंसिडेंट होगी, यहाँ से फिर वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। दैट्स द थिंग। ठीक है, ओके। चलो। और अब हमारा लास्ट वाला रह गया। इसमें इमेजेस के केसेस नहीं है, इसमें जस्ट 2 केसेस, एज आर्यमन वाज सेइंग वन डे। इसमें कोई केस नहीं है, ऑब्वियस, इट्स वेरी इजी। चलो नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ वाला कैसा था? फोर्थ वाला कुछ ऐसा था। ये हमारा कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में हम क्या देखते थे बच्चों? हमें यहाँ पे पहले बनाना पड़ेगा एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट्स को पहले नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा पोल, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार लॉ क्या कहता है, पहले लॉ समझ लो। देखो दर्शिका आप देखो, क्योंकि आप इन सब क्लासेस में नहीं थे, या इस बार लॉ कॉनकेव के लिए कहता है, अगर कोई रे पोल की तरफ जा रहा है, अगर कोई रे पोल की तरफ जा रहा है बेटा, और जितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, वो रे उतने ही एंगल से पोल से बाहर आ जाएगा। यानी कि ये वाली भी जो एंगल होगी ये भी थीटा होगी। ये था कॉनकेव का, ठीक है ना? अभी मैं आपको टाइम दूंगा, अभी आप देखो, अभी थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान दे लो, ठीक है? अब हम इसका कॉन्वेक्स वाला पार्ट बनाते हैं, नंबर 4, और फिर मैं रुक जाऊंगा। आप देखो एक बार समझ लो, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद मुझे क्या बनाने हैं? मुझे प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद मुझे नेमिंग करना है। नेमिंग में ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे पोल पे आ रही है, ये इंटरेस्टिंग है, अगर कोई रे पोल पे आ रही है तो पोल तो इस बार भी आएगा। अगर कोई रे पोल पे आ रही है और यहां आने पे उसने जितना एंगल बनाया थीटा, वो उतने ही एंगल से पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर ये थीटा है, सॉरी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। समझ में आया? राइट? सो आई वुड राइट दैट, अब इसका रूल भी लिख लेता हूं, फिर आपको टाइम देता हूं। अ रे, सो रे इंसिडेंट at pole making ray incident at pole with an angle of incidence with a certain angle of incidence reflects back, is reflected back with a angle of reflection equal to the angle of incidence. बस अब तो इस लॉ में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस मिरर को चेंज कर दिया है। मिरर को चेंज हुआ, और मिरर कभी फोकस और इसके साथ हैंडशेक नहीं कर पाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ हैंडशेक, क्योंकि वो अलग साइड हो गए ना इस बार। हाँ, इसलिए अब हमारे जो रिश्तेदार हैं वो एलओसी के उस पार रहते हैं, हम उन्हें सिर्फ वीडियो कॉल कर सकते हैं। देखो ये सब वीडियो कॉल कर रहा है। कहाँ पे वीडियो कॉल हो रहा है? ये देखो, ये पूरा चीज वीडियो कॉलिंग हो रहा है। यहाँ वीडियो कॉलिंग हो रहा है, यहाँ वीडियो कॉलिंग हो रहा है, मिलना नहीं हो रहा है, यहाँ वीडियो कॉलिंग हो रहा है, ये सब। बस जिस दिन वाघा बॉर्डर पे गए थे उस दिन हाथ थोड़ा मिला के आ गए, बाकी सब में वीडियो कॉलिंग। समझ में आया? चलो अब इनको बना लो, और फिर 2 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। 2 भी नहीं, एक ही केस है। सर आज बस कॉनकेव मिरर करना है। सब कुछ कॉनकेव पे होता है, क्योंकि कॉनकेव में ही वैरायटी है नहीं, ना। आज सॉरी, आज कॉन्वेक्स मिरर ही कर रहे हैं। आज कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। एक ही केस है कॉन्वेक्स मिरर में। आपको सवाल आएगा यूजेस पे, कॉन्वेक्स का सवाल आएगा यूजेस पे, अच्छा,
ठीक है ना, और बाकी कुछ नहीं आता है, यूजेस पे सवाल आता है और कुछ नहीं आता है। न्यूमेरिकल्स या कुछ नहीं? न्यूमेरिकल्स में करना क्या है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही रहेगा, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, जस्ट लुक एट हियर, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा बिकॉज द एफ इज ऑन द राइट साइड। हाँ, सो यू अप्लाई दैट नॉलेज, दैट्स ऑल। और इमेज दिखा देंगे अभी कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, तो इमेज दिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब ये बन जाए मुझे बोलिए, फिर हम इमेजेस देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है बेटा, आज का अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। पहले हमने रूल्स को पढ़ा, अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। और ये आपके लिए एकदम सीबीएसई विल बी वेरी वेरी काइंड टू यू, बिकॉज इसमें कोई वैरायटी है ही नहीं। ठीक है, पहला वर्ड मैं लिखता हूं और इसके बाद आप देख लो कितना आसान है। इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हाय हाय, इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स, पहले समझ लो फिर लिखो आप। इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मतलब ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है ना, ये फोकस है, सेंटर। इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, तुम यहां रहो या तुम इंफिनिटी के पास रहो, या तुम इंफिनिटी के पास रहो, कहीं भी रहो, देयर इज वन सिंपल रूल, राइट। इमेज फॉर्म के कुछ रूल्स हैं और वो रूल बहुत ही आसान है। इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, now how to remember this, right? I'll give you a very nice idea. I'll tell you, suno. The mirror which is there in front of me when I drive my car, or the mirror which is hanging on the door, jo side viewing mirrors hai, they are convex mirrors. What are they? Convex mirrors. सुनो अब मेरी बात, अब अगर मेरे बिल्कुल पीछे एक कार रहे या मेरे बहुत दूर भी एक कार रहे, क्या आपको कार कभी उल्टा दिखता है क्या? उल्टा मीन्स अपसाइड डाउन दिखता है क्या? नहीं दिखता है, नहीं दिखता है ना। तो इसका मतलब इमेज क्या होता है, हमेशा इरेक्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पीछे जो किया सेल्टोस की गाड़ी आ रही है, किया सेल्टोस का तो एक साइज है ना, पर आप पूरे गाड़ी को अपने मिरर में देखते हो, थोड़ा दूर रहता है तो इमेज कैसा रहेगा? डिमिनिश्ड है, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप इतना सा मिरर में इतना सा किया सेल्टोस They're highly diminished or like just diminished? diminished, I'll not say it's highly diminished, is diminished। देखो, Okay. क्योंकि मैं मेरे मिरर में किया सेल्टोस भी देख रहा हूँ, साइड में स्कूटर वाले को भी देख रहा हूँ, और जो गाय घूम रहा है पूंछ हिला हिला के उसको भी देख रहा हूँ, सबको पूरा देख रहा हूँ, है ना। सर एक हाँ। क्वेश्चन है। रुक जा एक मिनट होल्ड कर। डिमिनिश देखूंगा यानी ये सब है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम तो यही बात करते हैं ना, पोजीशन, नेचर, डिमिनिश्ड, यानी इन सब की मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी और लेस देन 1 होगी, सीधी बात है, प्लस होगी और लेस देन 1 होगी। प्लस माने सीधा खड़ा है, गाय ही दिखता है, गाय उल्टा नहीं दिखता है मेरे को, गाय ही दिखेगा, छोटा गाय दिखेगा। किया सेल्टोस ही दिखेगा, छोटा दिखेगा, तो यहाँ पे छोटा हो गया। और जो खूबसूरत सी लड़की गुजर गई वो भी मुझे खूबसूरत ही दिखेगी, छोटी दिखेगी, लेकिन एक शर्त है वहां पे, वो अगर बैग राइट हैंड पे लेके जा रही है वो मुझे लेफ्ट हैंड में, क्योंकि वो लैटरल इन्वर्शन है, वो भी होगा। देखो मस्ती के साथ सीखना भी आपको, लैटरल इन्वर्शन रहेगा। एम्बुलेंस, मुझे एम्बुलेंस दिखेगा पर नेम उल्टा दिखता है, इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा से लिखते हैं। ये 2 हो गया। तीसरा, ये सारे कहां पे बन रहे हैं? मेरे मिरर के और पीछे बन रहा है, मतलब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, सुंदर सी लड़की गुजर गई, अब मैं मिरर में उसको देख रहा हूं, कहां देख रहा हूं? मेरे मिरर के पीछे। यानी ये सारे इमेजेस वर्चुअल होते हैं, वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर। सोचो, है ना।
हम थोड़ी ऐसे घूम घूम के वाह मैम बहुत सुंदर लग रही है, वाह ऐसे जगह धक्का हो जाता है, हम तो मिरर में ही देखते रहते हैं वाह। और कोई मूवीज में दिखाते हैं ना, ड्राइवर ऐसे बैक सीट वाले के साथ मिरर मिला लेते हैं, वो देखो सारा। जितना आप रियल लाइफ को देखोगे उतना ही आप समझोगे। डिमिनिश्ड, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर। बस डू यू नीड टू रिमेंबर दिस? नाउ आस्क मी दैट क्वेश्चन। साहिब, आई कम टू योर क्वेश्चन। यू डोंट नीड टू रिमेंबर, यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग। यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूं, अगर आपको याद नहीं आता है तो आप याद रखिएगा, कार मिरर इज कॉन्वेक्स। बट इतना बता दिया। गाड़ी के मिरर में अगर कोई हाथी आपको ऐसा दिखता है तो उसका इमेज भी कैसा दिखता है? अब आप बोलोगे सर आप छोटा हाथी ड्रॉ करोगे, नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम हाथी को ऐसे ही छोटा कर देंगे। ऐसा दिखता है हाथी, सीधा ही दिखता है। और सिर्फ हाथी नहीं दिखता है, हाथी के पास जो गुजर रही थी सुंदर सी नारी, वो भी हमें दिखती है। कैसी? यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है ऐसा। और सब मिरर के कहाँ दिखता है? सर ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। मिरर के किस साइड दिखता है? मिरर के दूसरे साइड। ये सब कैसे है? ये सब वर्चुअल है। यार तुम्हें ना मैं बार बार बोलता हूँ, आई एम नॉट बोस्टिंग। तुम्हारा कुछ, यू मे बी सी वी हैव गॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद, तुम्हारा कोई टीचर भी तुम्हें ऐसे ड्रॉ करके ऐसा इंटरेस्ट करके नहीं बताएगा कि तुम जिंदगी में भूलो। ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? वर्चुअल है। कैसे है? डिमिनिश्ड है, क्योंकि हमें सब कुछ दिखता है। शहर में क्या हो रहा है सब कुछ दिखता है मिरर में। डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। कहीं भी हो मतलब सर खाली यही एक सुंदर नहीं, ऐसी एक और सुंदरी थी और वो यहाँ है। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तुम्हें दिखेगा। ये तुम्हें कैसे दिखेगा? ये ऐसा है, इसको भी हम क्लोन करेंगे। ओहो बहुत ज्यादा क्लोन हो गया, कोई बात नहीं, ये हमें यहाँ दिखेगी और यहाँ ये छोटी सी दिखेगी, ऐसे। बिल्कुल ऐसा रहेगा। वो अभी क्रॉस हो गया, यहाँ चला गया। बस ये ड्राइंग याद रखना और बेवकूफी से आंसर मत देके आ जाना। अभी आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। साहब योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो फिजूल का सवाल है वो पूछ सकते हो। चलो सर इमेज की नॉट इमेज की, सॉरी, मिरर का साइज, डज दैट अफेक्ट एनीथिंग? इट विल गिव यू रेंज ऑफ कवरेज। अपर्चर बेसिकली? एपर्चर नहीं देता, रेंज कितना आप देखना चाहते हो। इसलिए जो ट्रक का, तुमने वॉल्वो की बस देखी है ना? हाँ हाँ, वॉल्वो के बस में अगर तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड को गुजर जाते देखोगे वो लाइफ साइज दिखेगा, उसका मिरर ऐसे सामने रहता है बड़ा सा। वही होंडा एक्टिवा का मिरर देखा, यही चुट्टी से रहता है। हाँ। बस कवरेज पता चलेगा, कवरेज कितना है वो हम देखेंगे अभी। अच्छा। जितना, इसलिए हमारे गाड़ी के जो सामने वाला मिरर देता है ना, जो ड्राइवर वाला मिरर रहता है, वो बहुत ही ऐसे फैला हुआ रहता है। जितना फैला रहेगा उतना हमें दिखेगा। तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको पूछे साइज, नेचर एंड पोजीशन, आप बोलना बेवकूफ के सवाल मत पूछो। कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो, इमेज तो हमारे कैसे बनेंगे? इमेज हमारे हमेशा इरेक्ट बनेंगे, मैग्निफिकेशन डाउन होगा, और फिर क्या होगा? वर्चुअल होगा, और कैसा होगा? और होगा डिमिनिश्ड होगा। बस हाँ सर, ये सब सारी बातें तो हो गई। तो सोचो, आप कॉपी कीजिए इसको और फिर अगले वाले चीज को दें। समझ में आ रहा है तो आर्यमान डार्लिंग, एबल टू अंडरस्टैंड? अच्छा, स्कूल हाफ हो रहा है कि फुल हो रहा है? आर्यमान अभी बंद हो गया ना तुम्हारा स्कूल? बंद हो चुका है? हाँ सर बंद हो गया। बंद हो गया। तो सारा दिन आजकल मतलब व्हाट इज, हाउ इज द टाइम पास्ड इन द हाउस? मैं उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, पढ़ता हूँ 2 घंटे, वाह। 1 घंटा और आधा के लिए, हाँ, फिर नहाता हूँ, लंच करता हूँ, फिर टीवी देखता हूँ। बस हो गया। मतलब 4 दीवारी के अंदर जिंदगी। हाँ। वाह। और बाकी मैं और मेरा स्क्रीन टाइम। शाबाश। टास्क करो, छोटा सा एक फ्लावर पॉट लो, छोटा सा पॉट ले लो, उस पॉट में जर्मिनेशन दिखाओ। जैसे घर में कोई बेल पेपर या कैप्सिकम आता है ना,
तो उसके सीड्स को लेके उसमें डुबो दो, देखो फिर उसमें शूट्स आते हैं कि नहीं, तुम्हें अच्छा लगेगा, दैट कैन बी अ प्रोजेक्ट एंड यू विल लव दैट। फिर उसमें सैपलिंग जाएंगे, एक सैपलिंग को ट्रांसप्लांट करके अच्छे से ग्रो करो, एक बढ़िया सा बेल पेपर का प्लांट ग्रो करो, फिर उसके फोटोज खींचो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ये मैंने किया हॉलीडे में, यू विल फील गुड अबाउट इट। ओनली थिंग इज यू आर नॉट डूइंग इट। ठीक है, डन, शैल आई गो अहेड नाउ? अच्छा सर, हाँ अच्छा ठीक है, फाइन, आगे जाओ। ओके, नाउ देखो अब हम वहां पे जैसे देखते थे ना, इमेजेस एट पोल, इमेजेस बिटवीन पोल एंड सॉरी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। यहाँ ये सवाल पैदा ही नहीं होंगे, क्यों? इस वर्ड के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, तो इसके बेसिस पे हम सिर्फ दो पोजीशन का एनालिसिस करेंगे, इसके बेसिस पे हम सिर्फ दो पोजीशंस का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कहीं भी रखो एक ही आ रहा है ना। और वो दो पोजीशन क्या होगा? और दो पोजीशन होगा, एक होगा बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल एंड इंफिनिटी, एक तो हम ये देखेंगे सर, एक और क्या देखोगे? एक और देखेंगे एट इंफिनिटी। सर रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे क्या? नहीं, आ ही नहीं सकते अलग अलग, रिजल्ट्स तो यही आएगा ना, जो हमने पढ़ लिया वही रिजल्ट आएगा। खाली जब सर इंफिनिटी में ले जाओगे, जरा कॉमन सेंस अप्लाई करो, ठीक तुम्हारे पीछे एक गाड़ी है, क्या तुम उस गाड़ी के इमेज को देख पाओगे मिरर में? बिल्कुल देख पाएंगे। अब हम उस गाड़ी को स्पीड बढ़ा के और आगे चले गए और आगे चले गए, धीरे धीरे वो गाड़ी क्या होगा? अदृश्य हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रहेगा तो हमारा इमेज कैसा फॉर्म होगा? हाईली 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 डिमिनिश्ड। और अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा। बस यही फर्क है, कॉमन सेंस अप्लाई करो, और कुछ नहीं चाहिए। देखो, इफ योर ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे एट इंफिनिटी, यू वोंट बी एबल टू सी एट ऑल, यू वोंट बी एबल टू सी एट ऑल, एकदम छोटा सा होगा। चलो इसको, इसके इमेज को देख लेते हैं, पहले वाले को, ठीक है ना। ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड इधर ही आ गया, अच्छा चलो इसको हटा लेते हैं। चलिए, नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को हमने पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा, तो सर कैसा बनेगा? आ जाओ देखते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सर ऐसे कैसे मिरर बना देते हो आप? ऐसे तो हमने कभी मिरर देखा नहीं। अब बेटा काटा नहीं, अभी काटेंगे, काट लिया, सुंदर दिखने के लिए ऐसा बनाया गया था, ठीक है। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, बड़ा घटिया बना है प्रिंसिपल एक्सिस, मिडिल से बनाइए सर, ये मिडिल से बना। सर मिरर को और थोड़ा छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा और छोटा कर दिया जाए मिरर को, राइट, और मिरर को और छोटा कर दें। अब अगला काम क्या है सर? अगला काम है एचिंग कीजिए मिरर को, एच 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 कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है सर? नेक्स्ट काम इसको बनाइए पोल, और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे फोकस, इसको लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इंफिनिटी कहाँ पे है? इंफिनिटी कहीं तो है, हमें नहीं पता सर कहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो चलो ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर देते हैं, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी मींस यहाँ तक। चलो यहाँ तक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, इतना तक आप कर लीजिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिख रहा है? ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है, ये है ए, तो ये है बी। इमेज कैसा बनेगा? ए डैश बी डैश ही बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, आइए। So I have to anyway make this image stand out. In this case, the image is always formed between pole and focus. Between pole and focus. So मैं ना इसको पहले से ही ऐसे बना लेता हूँ, नहीं तो क्या है ये मिलाना, आप तो स्केल से कर रहे हो, मैं तो स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ, ये मिलेगा नहीं ठीक से, ठीक है। सो माय इमेज वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब इस इमेज को कैसे मैच कराएंगे? आइए इस इमेज को मैच कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो the image will be coming out in this manner. So यहाँ से ray of light बनाना है ना, ray of light ऐसे बनाते हैं. Let's say this. So a ray of light which is parallel, sorry, a ray of light which is coming towards the parallel to the principal axis
parallel to the principal axis gets reflected as if it is coming out of the focus. Rule number 1. Clear hua ye? A ray of light, we have a ray of light which is coming parallel to the principal axis. It comes out in such a manner that it is coming out of focus. Right? And the next rule is very simple. We will take a ray of light which will be aiming at the center of curvature. Isko thoda hata leta hu, because otherwise maybe I am wrong. So we will take a ray of light which is aiming at the center of curvature. This is our second ray, which is aiming at the center of curvature. A ray of light which is aiming at the center of curvature. So how does it aim at the center of curvature? See, I have drawn the image earlier, pehle draw kar liya, but that is wrong. That's why my center of curvature is coming so much offset. My drawing is not correct, okay? Drawing correct nahi hai. A ray which is pointed at which is coming towards the center of curvature gets reflected back in the same direction. अब देखो, दो virtual rays, ये क्या है बेटा? ये दोनों हमारे virtual rays हैं. These are virtual rays. Virtual rays. और virtual rays के intersection पे बना हमारा image A dash B dash. तो ये image भी क्या कहलाएगा? ये virtual image कहलाएगा. अब आप compare करो कि अगर आपने concave mirror को देखा तो कहीं भी virtual rays का intersection नहीं हुआ except the dentist and that beauty compact mirror छोड़ के, बाकी सब में real rays का intersection हुआ है. यहाँ तो virtual rays का intersection हुआ है, तो ये virtual image है. बस हो गया. तो इसके पोजीशन और इसमें हम लिखेंगे नंबर 1, दिस थिंग डजंट कम, कोई आपको ड्रॉ करने ये देगा नहीं. नंबर 1 हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. इमेज पोल और फोकस के बीच में होता है. सर इमेज भी काफी छोटा बनता है. हाँ, इमेज कैसा रहेगा? वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. बस और कुछ नहीं जानना है आपको, इतना ही जानना है आपके सिलेबस को. और इसका आपको बताया ना, गाड़ी में हमें सब दिखता है, किया सेल्टॉस, हाथी, घोड़ा, पालकी, ऑटो, ट्रक, भैंसा, सब दिखता है, सब छोटे छोटे दिखते हैं. ठीक है. These two drawings do not come at all, huh? Just so you should just, what will come is this part. Questions based on this particular thing. This is important for you. This is important for you. The diagrams for convex mirror are not important. This is important. कि कैसा इमेज आप एक्सपेक्ट करते हो. Right. A second one, image at object at infinity. Object at infinity. So you can just write down. There's no point in drawing. There's no question that comes up. The image is formed at focus. At focus, erect, virtual. The only change you will make is instead of diminished, you will write highly diminished. एकदम एक dot की तरह form होगा, highly diminished. Because formation of image is actually explanation of 1 or 2 rays is beyond your concept right now. So if you want to draw, you can draw. ये हमारा convex mirror, ठीक है?
अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो. And this is your principal axis. So where are the rays coming from? Rays are coming from far off. So far off rays are always parallel. So how will the rays come? One ray is coming right at the pole. So the ray which comes at the pole gets reflected at the same angle. Another ray will be coming and hitting somewhere here. Okay, it's reflected here. And here also it observes that pole wala. It's like almost heading towards the center of curvature. तो नहीं बोलूंगा pole जैसा. तो ये ray अभी आप समझोगे नहीं. So it's like it will come out in this direction, right? And if you now pull these two rays, this diagram doesn't come to you. So now pull these two rays. One is this, right? And another would be this. So your image will be formed right at focus. This is your image. Here your image will be right at the focus. ये वाला रे थोड़ा घटिया बना है, इसको ठीक कर लेते हैं. Okay. और ये रे थोड़ा सा ऐसे जाना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा जाना चाहिए. But this diagram doesn't come. That's all that you should remember. Highly diminished and much smaller than the object. अब हम पढ़ेंगे main चीज जो है uses of convex. ये important है फिर से. हाँ, this is important. And this is all about uses of convex. हमें chapter खत्म करना है. Uses of convex mirror. Convex mirror. और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या है. नंबर वन यूजेस क्या है? रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. रियर व्यू मिरर, और ये उसका सबसे बड़ा यूज है, मिरर इन व्हीकल्स. और ऐसा क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सही है, क्योंकि ये क्या देता है? ये इरेक्ट देता है, हमें ये चाहिए. ये वर्चुअल है, वैसे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है. बिहाइंड द मिरर ये भी हमें चाहिए. ये डिमिनिश देता है, हमें चाहिए. पूरे शहर में क्या हो रहा है देखना चाहिए, ये डिमिनिश देता है. ये सब हो गया, ठीक है. सर अब एक सवाल आता है कि सर अगर ऐसा ही था तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसा मिरर क्यों लिया और प्लेन मिरर क्यों नहीं लिया? सोचो तो, ऊपर मैंने दोनों चीजें लिखे, वो प्लेन मिरर में भी होता है. उन्होंने कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लिया, प्लेन मिरर क्यों नहीं लिया? बेटा प्लेन मिरर में एक इशू क्या है? हाथी दिखेगा. वो डिमिनिश नहीं होएगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज ना. ये हमारा सुंदर गजराज, ठीक है, ये गजराज है. तो इसको आप कैसे दिखोगे वहां पे? सर हमारे मिरर में ना इतना ही आया, पापा के मिरर में ये सिर्फ कान देखा हमने हाथी का, क्योंकि फुल साइज आ रहा है ना. डू गेट इट? अब मेरा फोटो आ रहा है ना आपके सामने, आ रहा है. मैं से कैमरा के पास आ जाऊं और आपको पढ़ाऊं तो आप क्या देख रहे हो? है ना, इरेक्ट देख रहे हो मुझे, ठीक. ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज. सर पता नहीं मामा ने किसके पास पढ़ाने भेजा, उनका फोरहेड ही दिखता है हमको और कुछ नहीं दिखता है. तो ये वाला सीन हो जाएगा, ठीक है. ये भी कोई नहीं बताएगा ऐसे, ठीक है. और एक दूसरी बात है कि इस मिरर में कैसा रहता है, फिर भी ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पूरा फॉलो करेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें भी फॉलो होता है. और ये एक और वो ऐसे आया ऐसे गया. तो अगर आपकी आंख को कोई ड्रॉ करे ना, योर आईज आर एक्चुअली हियर, एट दिस पोजीशन इज योर आई. ये आपकी आई है, दिस इज योर आई, ठीक है ना. और आपके आई में आपको जो विजन का बैंडविड्थ मिलता है, आपकी विजन सिर्फ इतनी की होगी, इतना दिखेगा आपको. ये दिस इज योर विजन. वहीं अगर आप यहाँ पे देखें ना, देन योर रेंज इज वेरी हाई. कैसा रेंज रहेगा सर जरा बताइए तो? यहां तक से. अच्छा तुम लोग ये सब देखते हो, जैसे एलसीडी टीवी का एड आता है ना, द न्यू सैमसंग ओलेड, इट हैज गॉट अ वाइड रेंज ऑफ विजन. वाइड रेंज ऑफ विजन मतलब समझ रहे हो, टीवी यहाँ पे है, सामने से नहीं, किचन से भी ऐसे साइड से देखेंगे तो भी टीवी हमें दिखेगा. दैट इज कॉल्ड एन ओलेड टीवी का जैसा रहता है ना. हाँ सर, हाँ वैसे टीवीज आते हैं. सो दैट सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड हियर. यहां से जाएगा, फिर ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ, और ये फिर इतना. तो आपका देखो, आपका पैनोरामा, आपका विजन पैनोरामा कितना ज्यादा बढ़ जाता है. This is one of the, and the best another thing is, yes, you also need them to be diminished. You can't afford to see only the elephant's eyebrows, you know, you need to see the entire elephant. तो आपका विजन इतना बड़ा हो जाता है. Now why can't we not use a concave mirror in rear view mirrors? Sir, if we use a concave mirror, then the girlfriend who passed away will see upside down. उल्टा दिखेगा हमको.
और साइज में एबरेशन आ जाएगा, छोटा आदमी बड़ा दिख के आएगा, बड़ा आदमी छोटा दिख के आएगा। एक तो ये यूज है, और एक यूज कहाँ पे है इसका, ये सबके अपार्टमेंट्स में है, बेसमेंट के पार्किंग्स में रहता है ना। सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप, आजकल वैसे कोई मिरर नहीं लगाता है, सब कैमरास सर वो लाल वाला मिरर ना जो हाँ, हमारे लाल वाला basement में भी मिरर। है। वो लाल वाला मिरर की एक खासियत क्या है, वो लाल वाला मिरर का वही है, द स्पैन ऑफ विजन इज वेरी हाई, सो वी यूज इट एज सिक्योरिटी मिरर्स, क्योंकि यू कैन कीप आईज ऑन शॉपलिफ्टर वगैरह जो भी है आपको दिखता है। सिक्योरिटी मिरर्स इन पार्किंग्स जहां पे आपका ब्लाइंड स्पॉट रहता है, ब्लाइंड स्पॉट। और दूसरा क्या रहता है, ब्लाइंड स्पॉट के अलावा आपका रहेगा कैसा, शॉप्स में इसको रखते हैं जस्ट फॉर शॉपलिफ्टर्स वगैरह आके कोई आपका हमला ना कर दे दुकान पे। क्लियर, ये यूज है इसके सिक्योरिटी में। यू नो व्हाट इज अ ब्लाइंड स्पॉट, डू यू नो व्हाट इज अ ब्लाइंड स्पॉट? अ ब्लाइंड स्पॉट इज अ पोजीशन, जैसे ये आपकी गाड़ी है ना, कल परसों सब लोग ड्राइविंग करोगे, थोड़ा सीखना चाहिए। आपकी गाड़ी है, मान लो दिस इज योर व्हीकल, ये आपकी व्हीकल है। नाउ दिस इज द टॉप व्यू ऑफ योर व्हीकल ना, ये आपकी व्हीकल की टॉप व्यू है। ये आपका एक व्हील है, ये आपका दूसरा व्हील है, ये आपका एक और व्हील है, ये आपका एक और व्हील है। नाउ यहाँ पे हम क्या निकाल के रखते हैं, यहाँ पे हमारा मिरर है, मान लो ये हमारा मिरर है और ये हमारा मिरर है। तो हमारी मिरर कैसी विजन देती है, हमारी मिरर कुछ ऐसी विजन देगी। हमारी मिरर्स हमेशा यहाँ से कैप्चर करेगी और कुछ यहाँ तक देगी, ऐसे देगी। और ये मिरर कैसी देगी, ये मिरर ऐसे कैप्चर करेगी। अगर आप साइकिल लेके किसी ट्रक या किसी चीज के ये एरिया में चलाना शुरू कर देते हो ना, देन यू आर इन अ बिग डेंजर, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ बैठा जो ड्राइवर है, जो हमारा ड्राइवर है, वो आपको देख नहीं पा रहा है, यू हैव गॉन इनटू द ब्लाइंड स्पॉट। एग्जैक्टली द फ्यूल टैंक डोर, जो आपका फ्यूल टैंक डोर होता है ना, उसके पास कभी भी टू व्हीलर लेके मत चलाओ। देयरफॉर इन अमेरिका दे से अ वेरी नाइस थिंग, अमेरिका में जो ट्रक्स चलते हैं ना, जिनके ऐसे बड़े बड़े मिरर्स होते हैं सामने, ट्रक के पीछे लिखा रहता है। तो अब आप सोचो कैसा रहेगा, पीछे आप टेलगेट करके अपने व्हीकल में आ रहे हो, हाँ दिस इज योर व्हीकल, सपोज दिस इज योर व्हीकल। नाउ इन योर व्हीकल यू आर ड्राइविंग हियर, और यहाँ पे ये ड्राइवर है। वेरी इंटरेस्टिंग, देखो जो ट्रक का ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर का इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा और आप ट्रक के ड्राइवर को यहाँ से देख सकते हो। यू कैन सी द ट्रक ड्राइवर्स फेस हियर, देयरफॉर दे राइट, पीछे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, दे हैव रिटन दिस मैसेज फॉर यू, इफ यू कांट सी मी आई टू कांट सी यू। Okay, so beautifully written, if you can't see me। अगर ये आदमी इस तरह से गाड़ी चला रहा है कि ये विजन को मिस कर रहा है, तो ये ड्राइवर भी इसको देखो, ये इसको दिखेगा तो ड्राइवर को क्या, ड्राइवर को ये भी तो दिखेगा ना, द रिवर्स भी तो दिखेगा, ये गाड़ी भी तो इसको मिरर में दिखेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट ड्राइविंग, दिस इज अ राइट वे ऑफ ड्राइविंग ऑन हाईवेज। नेवर एवर गेट इनटू ब्लाइंड स्पॉट ऑफ अ व्हीकल। हैदराबाद इज फेमस फॉर दैट, क्योंकि सब लोग आपके चिपक चिपक के चलाते हैं ना, so blind spot में आने से आपको धक्का लग जाने का चांस है। So what are the questions? What is quick recap of whatever we studied? What did we study today? We studied image formation by a convex mirror. Before that, we needed to find the rules of convex mirror image formation. So as a memory, we picked up everything that we knew very well. कौन से concave mirror के images को देखा। पहला वाला देखते हैं कैसा है बेटा, पहला वाला देखते हैं, quick revision। रे ऑफ लाइट पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस, रे ऑफ लाइट पैरेलल अपीयर करता है इस तरह से, सॉरी अपीयर करता है जैसे कि देखो रे ऑफ लाइट कैसा है, रे ऑफ लाइट पैरेलल इस तरह से निकल जाता है जैसे लगता है मानो फोकस से ही निकला है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई पास करता है इस रास्ते से, इसी रास्ते में आएगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एम हुआ है तो वो उसी रास्ते से निकल जाएगा, दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल था फोकस से पास करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगे, फोकस की तरफ आओगे तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाओगे, ठीक है ना। चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वही रिफ्लेक्शन होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वही रिफ्लेक्शन, बस खत्म, चारों रूल्स हमारे खत्म हो गए यहाँ पे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो चीज है कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो और गाड़ी के बारे में सोचो, हाथी सीधा दिखता है, हाथी छोटा दिखता है, हाथी वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर होता है। ऑन बेस्ड ऑन दिस, कहीं भी, इस कहीं भी को हमने दो भाग में देखा,
बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। पोल एंड इंफिनिटी में लेंगे तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इमेज फॉर्म होगा पोल और फोकस। और अगर हम इंफिनिटी में लेंगे तो हमारा इमेज कहाँ होगा, हमेशा फोकस में, और ये सिर्फ हाईली डिमिनिश्ड होगा, इस केस में डिमिनिश्ड। इससे हमने देखा कि इन मिरर्स को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, क्योंकि ये हमें इरेक्ट देता है, वर्चुअल देता है, डिमिनिश देता है। और प्लेन मिरर को क्यों नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्पैन कम रहता है, इसका स्पैन जो है इसका काफी बड़ा है, बहुत दूर की चीजें दिखाएगा। और सिक्योरिटी मिरर्स जो पार्किंग, उसमें ब्लाइंड स्पॉट और शॉप्स के लिए। क्लियर? इसके साथ साथ आपको एक सवाल, अब एक कॉमन डिस्कशन एंड देन वी विल क्लोज द चैप्टर। मान लो आपके पास एक M1 मिरर है, एक M2 मिरर है और एक M3 मिरर है। आपको बोला डू नॉट टच, हाथ मत लगाओ, डू नॉट टच। ठीक है दर्शिका, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3 मिरर है, डू नॉट टच। आप कैसे शिनाख्त करेंगे कि कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा प्लेन है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, सोचो। हाथ नहीं लगाना है, बुक देखने की क्या जरूरत है साहब, अपना रिकॉल करना। प्लेन मिरर होगा तो सबसे पहले कॉनकेव क्या करेगा, कॉनकेव आपको उल्टा, किसी भी एक इमेज में अगर आपको अगर इन्वर्टेड इमेज दिख गया, आप उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, अगर आपको इन्वर्टेड इमेज दिखा तो आप आंख बंद करके बोल दो कि ये कॉनकेव है। कॉनकेव हमेशा इन्वर्टेड देता है। अगर आपको सेम साइज दिखा, सेम साइज, अच्छा तो फिर आप फिर क्या प्लेन बोलोगे? होएगा, फिर तो ये प्लेन plane होएगा। mirror है, सवाल ही नहीं। और और फिर अगर तीसरा आपको स्मॉलर दिखा और इरेक्ट दिखा, सेम साइज दिखा, इरेक्ट दिखा, तो प्लेन। तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स। हाथ लगाने की जरूरत नहीं। नया कोई घर पे चम्मच है ना, नया चम्मच जिसमें अभी भी शाइन है, उसके सामने कुछ भी एक चीज ऐसे रख के देखो ना, ऐसे पेन रख के देखो, आपको उल्टा दिखेगा वो पेन। then you can do it right now. See, if you have a spoon, you bring a spoon, one side of the spoon is convex, one side of the spoon is concave. That's the best example. एक स्पून लेके उसके सामने बेटा कोई भी उसके कॉनकेव साइड में रख के देखो, तो एक छोटे से पेन को, आपको पेन उल्टा दिखेगा। और स्पून का दोनों साइड दोनों ही होता है ना, एक साइड कॉन्वेक्स है, एक साइड कॉनकेव है। और कॉन्वेक्स साइड में रख के देखो, आपको स्पून छोटा दिखेगा। एक कॉन्वेक्स के ऊपर प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम लेते हैं, दिस इज ऑन कॉन्वेक्स। देखो कितना आसान होगा। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखो बिना सॉल्व के आंसर लाएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बोला है 30 सेंटीमीटर्स। आपको कमेंट करने बोला है नेचर, पोजीशन, इमेज। Nature, position, image. Now you have to give a value. Otherwise, you know the nature. What is the position? Position will be always between. अच्छा, पोजीशन को कैसे देखोगे? आपको क्या बोला है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, यानी कि फोकस कितना आएगा बोलो बेटा? फोकल लेंथ कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर आएगा। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? प्लस 15 सेंटीमीटर। नहीं, प्लस बाद में। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 10 cm इन फ्रंट रखा है। Which means your object is not at infinity. Your object is anywhere between pole and infinity, right? It's not at infinity. So where should your image be formed? Your image should be formed between pole and focus. मतलब आपका जो image distance आप कैलकुलेट करोगे, और ये image कैसा है दर्शिका? वर्चुअल है, उस साइड बनेगा। मतलब ये image distance हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और लेस देन 15 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं? बिकॉज ये इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? पोल एंड फोकस के बीच में फॉर्म होगा। सर आपने प्लस कैसे कह दिया? देखो बेटा ऐसा है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर यहां से यहां ये एफ है, ये तो आपको दे दिया है +10, क्योंकि इस बार आपकी फोकस इस साइड है। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हो बेटा? ऑब्जेक्ट सर हम यहाँ 10 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, मतलब -10 पे रख रहे हैं। इमेज कहाँ पे फॉर्म होएगा? इमेज हमेशा यहाँ पे फॉर्म होगा, छोटा सा यहाँ पे। और इमेज कैसा होगा? अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, यानी कि दिस इज ऑब्जेक्ट हाइट है ना, ये हमारा HO है, ये हमारा HO है, तो हमारा HI कितना होना पड़ेगा? HI हमारा प्लस में बनेगा,
बट मच लेस देन 5 बनना चाहिए, छोटा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, करके देखें इस प्रॉब्लम को। आइए मिरर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v। मिरर में क्या होता है, आई, मिरर में आई तो आई एडिशन 1/u। 1/f की वैल्यू बिठाइए। सर इस बार हम 1/+10 लिखेंगे क्योंकि f उस साइड है। इमेज डिस्टेंस क्या है नहीं पता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 1/-10 बिठाएंगे। समझ में आया? अब 1/v को कैलकुलेट करो। 1/v क्या हो जाएगा, 1/v उस साइड रहेगा तो 1/10 प्लस 1/10 1/10 हाँ जी, Not 1/f, 1/15. सर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है ना? 15, हाँ, सॉरी हाँ, सॉरी तो सॉरी 10 हाँ, सर की गलती पे 10 नींबू निचोड़ ले, मन को शांति मिलेगी। 1/15, ठीक है ना, 1/15। मेरे इसमें नींबू निचोड़ के भी अगर तुम्हें शांति मिलता है फिर भी पढ़ाई कर ले। 15 और 10 का एलसीएम कितना है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 30, 30 है तो यहाँ कितना होगा 15/2 और यहाँ कितना आएगा 3, यानी कि 5/30। 5/30 बोले तो 1/6, सॉरी 1/6 आया है ना। सो 1/v का वैल्यू आया 1/6, यानी v की वैल्यू क्या है 6। क्या मैच कर रहा है हमारे साथ? बिल्कुल मैच कर रहा है, 15 से कम है 1/6। v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आप बोल दो पोजीशन कहां पे है, पोजीशन इज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर। पोजीशन आपने दे दिया। नेचर क्या आएगा, नेचर को आपको पहले ही पता है सर, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, और क्या होगा, और होगा डिमिनिश्ड होगा। अब वो फैक्टर भी निकाल ही लेते हैं, डिमिनिश्ड का फैक्टर। मैग्निफिकेशन बोलो, फॉर्मूला क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव v अपॉन u, माइनस है v ना। बाय u। तो माइनस, इस बार हमारा v है 6 और u की वैल्यू कितनी है सर, u की वैल्यू है कितना 10, प्लस नेगेटिव। 10 प्लस 10। हाँ, u is always minus, Oh, sorry, u is minus, u is ऑलवेज माइनस। नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 2 तिया 6, 2 5, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा। देखो मैग्निफिकेशन कितना कम आया, मैग्निफिकेशन आया प्लस 0.6, यानी 5 सेंटीमीटर वाला चीज सोचो 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 सोचो। ये देखो, ये स्केल जो है ना, इसमें 5 सेंटीमीटर इतना है, देखो ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट आया कितना 0.6, इतू सा आया है। क्या ये डिमिनिश्ड नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड है। ये फील लो, ये जब तक फील नहीं आएगा ना प्रॉब्लम करके मजा नहीं आएगा। फील आ गया अभी आपको, 5 सेंटीमीटर हाईली डिमिनिश्ड, बस दैट्स ऑल।